आज इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं. मीन्स इन इंडिया टुडे देयर इज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. बट ये हमेशा ही ऐसा नहीं था. सबसे पहले इट वॉज यूनाइटेड इंडिया. सो ये स्टेट्स और ये यूनियन टेरिटरीज बनी कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट these things. Means in this video we are starting from the articles from the constitution, and first we will talk about the union and its territories. That is how union evolved and how its territories formed and how we reached the states that we have today, that is the 28 state and 8 union territories. Okay, and the recent union territory that we have made is the UT of the JNK and Ladakh. Earlier the Jammu and Kashmir it was state. स्टेट को डाउनग्रेड कर दिया गया और यूटी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया एंड द लद्दाख वॉज मेड अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी. सो इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे कि फंक्शन कैसी, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, स्टेट्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूटी एंड स्टेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, वर्किंग एंड ओवरऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द पावर. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ. This was the time of 1950. Okay. Now, earlier what's happened before 1950, even you say during the British time. ठीक. So before 1950 हमारा जो पूरा इंडिया है it was classified in the 4 part, that is the part A, part B, part C and part D. Now what are these parts all about? देखिए पार्ट ए में क्या किया उन्होंने. पार्ट ए में फॉर द ब्रिटिश व्हाट दे डिड इट फॉर देयर ओन कन्वीनियंस. ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े स्टेट्स को रखा जस्ट लाइक दी बॉम्बे एंड मद्रास. ओके, एंड दीज स्टेट्स, दीज बिग स्टेट्स, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल. And the part B, they have put it the princely states, just like Jammu and Kashmir, and you have the Mysore, and then you have the richest state, that is the Hyderabad. Okay, the Hyderabad. The name of the richest Nawab of Hyderabad that we are talking about here is the Osman Ali Khan. Osman Ali Khan. Now, he was the richest Nawab of the Hyderabad. So these are the princely states. Princely states. The third classification that was done was on the basis of the convenience, is like the states like the Kurg or the Delhi, they fall under this category, and for them they have the under this, these states were under the control of the chief commissioner. Okay, and in the third part we have the territories like Andaman and Nicobar. तो ये 4 क्लासिफिकेशन थे that was done in the British era for the administrative convenience, ताकि इंडिया को क्या कर सके, इंडिया को एक सेंट्रलाइज पावर की तरह ऑपरेट किया जा सके. बट ये जो क्लासिफिकेशन था after the 1950, means after when we got independence from the British, then there was a need to reform the state, to reorganize the states, and the first name that came in our mind when we talking about the reorganization is the Vallabhbhai Patel. ओके, इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से काम किया. ठीक है, इन्होंने सारी प्रिंसली स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया. कहने का मतलब क्या है, जैसे द मोमेंट वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947, at that time all the states जो इंडिया में थी, ठीक है,
जो भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थी उनके पास ऑप्शंस थे. क्या ऑप्शंस थे? ईदर दे कैन ज्वाइन इंडिया, और दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान, और दे कैन बिकम independent. So this was the three options that is available to all the states. Clear? Now, so ये reorganization का काम किसने किया था? This work of reorganization was done by the वल्लभ भाई पटेल. Now after reorganization, there was a need when we are reorganizing कि हम जो states हैं उसको reorganize करें कैसे? What should be that ground for the reorganization of the state? So for that there was a commission named the Dhar Commission. This commission was constituted in the year of 1948, in the June of 1948. Clear? Now Dhar Commission इसने क्या कहा? इसने कहा कि we can reorganize the state on the basis of the administrative convenience, not on the linguistic lines. क्या बात किया? This was talked about the administrative convenience. ठीक, क्योंकि क्या हो रहा था? Just like I want to show you a map here. Let me show you a map. This map. Now, अब आप इस मैप को देखोगे तो इस मैप में क्या है कि in India there's a classification on the basis of the लैंग्वेज स्पोकन. जिसे हम लोग बोलते नहीं हैं कि कोस कोस पे बदले भाषा, चार कोस पे पानी. ठीक, तो हर एक कोस पे क्या है, जो भाषा है वो बदली जा रही थी. अब जो मेनलैंड इंडिया था, द मेनलैंड इंडिया वॉज असेंबल्ड और वो अटैच था विद द हिंदी बेल्ट. तो हिंदी को ही अपनी भाषा मानता था. ठीक है, लोकल लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती थी फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेट, स्पेशली इन दी सदर्न इंडिया. साउथ इंडिया में क्या है? साउथ इंडिया में हर एक स्टेट की अलग लैंग्वेज है. जस्ट लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द तमिलनाडु, तो वहाँ पर जो है लैंग्वेज है वो तमिल है. केरल में मलयालम बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, गोवा में कोंकणी बोलते हैं, और आंध्रा में तेलुगु बोलते हैं. ठीक, तो अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो आंध्रा के लोग हैं और जो मराठी स्पीकिंग पीपल हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कभी कभी क्लैश होते थे. और तेलुगु में, यानी कि जो आंध्रा में बहुत सारे तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे. ठीक, एंड दे आर डिमांडिंग फॉर द सेपरेट स्टेट. एंड देयर वाज अ पर्सन नोन एज दी पोट्टी श्रीरामुलु. ठीक, पोट्टी श्रीरामुलु ये वो पर्सन थे जो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए. ठीक, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि भाई हमें अपना एक सेपरेट स्टेट बनाना है फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन. ठीक है, क्योंकि तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन में दिक्कत ये हो रही थी कि यहाँ से ये मराठी हैं, तमिल हैं, तो उस वजह से काफ़ी सारे क्लैशेस होते थे. सो फॉर दैट वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए. क्लियर? और साइड बाय साइड गवर्नमेंट जो थी वो तो एफर्ट मार ही रही थी कि भाई हमें जो है क्लासिफिकेशन करना है स्टेट्स का. क्लियर? तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की स्टोरी हम सुनते हैं. नाउ उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो सबसे पहले क्या हुआ, धर कमीशन आया 1948 में. तो इस धर कमीशन ने कहा कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स तो कर सकते हैं, बट वी विल डू दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्राउंड as was demanded by the Potti Sitaramulu. Clear? So they were agreeing with the classification on the administrative convenience, not on the linguistic ground. So linguistic ground में वो classification of states नहीं करना चाहते थे. अगर linguistic ground में classification of states कर दिया so there was a big problem too. कौन सी problem? कि ये पूरा जो है वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है. अगर ये पूरी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट को एक स्टेट बना दिया गया फॉर एग्जाम्पल, सो इट विल बी नाइटमेयर टू ऑपरेट सच वॉल्यूमिनस स्टेट. है ना, इतने बड़े स्टेट को ऑपरेट करना इट इज़ नॉट अ जोक. ठीक है, तो बाकी के तो स्टेट छोटे छोटे हैं, बट व्हाट अबाउट दिस मेनलैंड इंडिया. इस वजह से स्टेट्स को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्राउंड इट इज़ नॉट फीजिबल. इस वजह से इस आइडिया को बाद में ड्रॉप कर दिया गया और धर कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के साथ गया. क्लियर? द सेकेंड थिंग दैट केम इज द
JPV कमेटी, एक और कमेटी बनी क्योंकि धर कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस उसको कोई मान नहीं रहा था. सो दे हैव कंस्टिट्यूटेड एन अनदर कमेटी known as the JPV committee. This was constitution in the year of the December 1948. ठीक, यहाँ पर 3 मेंबर थे. जे मीन्स द जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया. So these are the 3 members that were present in the JPV committee. Now the JPV committee also recommended the same thing. What? कि अगर स्टेट का क्लासिफिकेशन करना है सो वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्राउंड. क्लियर? और वहाँ पर मैंने जैसे बताया कि जो पोट्टी श्रीरामुलु हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, हंगर स्ट्राइक चल रहा था फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विज्म, यानी कि लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन. ठीक, तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए वो एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे. ठीक है, और इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे अमरजीवी या इमोर्टल बीइंग. फिर क्या हुआ? फिर एक जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो प्रोटेस्ट करते करते क्या हुआ कि वन डे बिकॉज ही वॉज ऑन ए हंगर स्ट्राइक, ही वॉज ऑन ए हंगर स्ट्राइक, उस वजह से क्या हुआ? उस वजह से इनकी डेथ हो गई. क्लियर? और उसके बाद गवर्नमेंट पे बहुत सारा प्रेशर बना एंड हेंस द गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन स्टेट नोन एज द आंध्रा स्टेट. आंध्रा स्टेट, प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट द आंध्र प्रदेश, इट इज़ द आंध्रा स्टेट. सो गवर्नमेंट ने अक्टूबर 1953 को क्या किया? आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्राउंड. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑन द basis of the linguistic ground that was formed in India, which is Andhra state, and this Andhra state was converted into the Andhra Pradesh in the year of 1956. तो पहले बना था 1953 में आंध्रा स्टेट, देन फर्दर फ्रॉम देयर इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द आंध्रा स्टेट इन द ईयर ऑफ द 1956. क्लियर? तो जब ये स्टेट बन गया ना, गवर्नमेंट को समझ में आया ओके ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे तो लोग नहीं मान रहे हैं एंड लिंग्विस्टिक ग्राउंड इज समथिंग दैट वी कैन नॉट प्रोवाइड. सो दे हैव मेड अ मिडिल पाथ. मिडिल पाथ का मतलब क्या? कि एक और कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया एंड दैट कमीशन इज नोन एज द फजल अली कमीशन. फजल अली कमीशन. ठीक, फजल अली कमीशन में कौन कौन से लोग थे? इसमें भी 3 लोग थे. पहले थे फजल अली, दूसरे थे HN कुंजरू और थर्ड वॉज द KM पानीकर. ठीक, ये 3 लोग इसमें थे और इन तीनों लोगों ने क्या इस्टेब्लिश किया? जो फजल अली कमीशन था इसने फर्स्ट, इसी को ही बोलते हैं फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. ठीक, either you can say Fazal Ali Commission or first reorganization commission. This was established in the year of 1953, means near about the death of the Potti Sriramulu. क्लियर? इस कमीशन ने क्या बताया? इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1953 में और इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की वो रिपोर्ट सबमिट की इन द ईयर ऑफ 1955. ठीक, और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया कि द कमीशन ने ये बोला कि ठीक है, यस द लैंग्वेज कुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर और द क्राइटेरिया इन क्रिएटिंग अ स्टेट, बट इट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट फॉर्मूला इन टोटो. कहने का मतलब है कि जो रिपोर्ट आई उसमें वन लैंग्वेज और वन स्टेट इस फॉर्मूले को क्या किया गया? टोटली बॉयकॉट कर दिया गया. बिकॉज आई टोल्ड यू इफ वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला अडॉप्ट करते इट विल बी अ नाइटमेयर टू ऑपरेट सच a big state as mainland India, because all the nearby states of the mainland India they speak only Hindi. So it is a Hindi belt state and it will be a nightmare to operate such big voluminous state. So इसलिए they have the Fazal Ali Commission or the first reorganization commission, they have rejected the one language one state formula. But they said
that the language could be a deciding factor. Language could be a deciding factor in the organization or formation of a state. तो अगर हम एक स्टेट का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, सो द लैंग्वेज कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, अ क्राइटेरिया, ठीक, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट. क्लियर? एंड हेंस फ्रॉम and hence in the year of the 1956, on the basis of the first reorganization of the state, there was the creation of the 14 states and 6 union territory. ठीक है, ये वन डे एग्ज़ाम में आ जाता है कि 14 स्टेट्स कितनी स्टेट्स बनी थी, कितनी यूटी बनी थी. सो देयर वाज द क्रिएशन ऑफ द 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी with the reorganization of the states, first reorganization of the state in the year of 1956. Clear? So we have talked about कि अभी तक क्या हुआ था कि 14 states in the year of 1956, in the year of 1956, ठीक, 14 states और 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हो गया था. क्लियर? और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी सारी स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है वो हुआ. क्लियर? नाउ हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द पार्ट फर्स्ट इट इज़ अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन फर्स्ट? द यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मीन्स कि द एसोसिएशन. ठीक है, यूनियन का मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन. क्लियर? एंड इट्स टेरिटरीज. टेरिटरीज मतलब कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, इनक्लेव्स हैं, दैट इंडिया ऑक्यूपाइज और वेयर देयर इज अ राइट ऑफ इंडिया. क्लियर? नाउ इसकी क्लैरिटी और मिलेगी आपको एज वी गो थ्रू द आर्टिकल्स. द फर्स्ट आर्टिकल सेज दैट नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन. द फर्स्ट वन इज द इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स. Clear? India, that is Bharat, shall be the union of states. Now there are two terms. The first one is the India and the second is the Bharat. Now what is the difference between the India and the Bharat? Now the two terms India and Bharat, they shows the modernity and traditional values of our motherland. India क्या है? India, it is the modern name. Okay, so this glorify the modernity. एंड द भारत इज़ द ट्रेडिशनल नेम ऑफ इंडिया. ठीक है, भारत क्या है? हमारा ट्रेडिशनल नाम है. सो दैट्स वाई देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन. कई सारी डिबेट्स हो रही थी वेदर वी शुड अडॉप्ट इंडिया, वेदर वी शुड अडॉप्ट भारत. सो हमने क्या किया? हमने दोनों को अडॉप्ट कर लिया. मीन्स दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ द मॉडर्निटी एज वेल एज द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स. नाउ अगर आप बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट दी लेट्स से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज रिटन दैट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट. पर इंडिया में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दम? ठीक है भाई, यूएस में लिखा हुआ है द फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है इसका? इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. क्लियर? देखिए, यूएस में लिखा हुआ है, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्लियर? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? मीनिंग एंड द रीज़न फॉर सेइंग सो इज द नॉट, क्या मतलब है इसका? इंडिया इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स. देखिए, यूएस में देयर वर 13 ब्रिटिश टेरिटरीज. ठीक है, 13 क्या थी? ब्रिटिश टेरिटरीज थी. और उन सब में क्या किया गया था? उन सब में एक एग्रीमेंट हुआ था. ठीक, देयर वाज अ एग्रीमेंट बिटवीन दी 13 ब्रिटिश टेरिटरीज इन द यूएसए. और उस एग्रीमेंट के बाद वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद क्या बना? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बना. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द यूएसए. यानी कि भाई यूएसए पहले कॉलोनी थी, यूएसए वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश. तो वहाँ पर 13 ब्रिटिश स्टेट्स थी और उन सबको एसोसिएट किया गया. ठीक, और फॉर्म किया गया क्या? फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स. ठीक,
तो फेडरेशन का मतलब ही क्या होता है? फेडरेशन का मतलब मैंने बताया था कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द फेडरेशन। ठीक, मीन्स देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी टू ईच अदर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। बट द केस ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट। इंडिया के केस में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इंडिया एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, ठीक है, अगर बात किया जाए कि इंडिया एज ए पॉलिटिकल एंटिटी वॉज ऑलरेडी देयर, पहले से ही इंडिया जो था वहाँ पर वो था। कहने का मतलब ब्रिटिश आए, ठीक है, उसके पहले ही जो इंडिया की जो फीलिंग है वो पहले ही थी। और उसके बाद भी जब हमने अपने स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हैव गिवन देम 3 चॉइसेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ईदर दे कैन ज्वाइन इंडिया और दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान एंड और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। सो वी हैव गिवन देम 3 चॉइसेस, हमने उन्हें 3 चॉइसेस दी थी हर एक प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है, कि वो इनमें से, इन तीनों में से कोई भी स्टेप ले सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द थिंग। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न। फर्स्ट रीज़न मैंने क्या बताया? फर्स्ट रीज़न मैंने ये बताया कि इंडिया एज द पॉलिटिकल एंटिटी वॉज ऑलरेडी देयर, ठीक है। यूएस में क्या हुआ था? यूएस में मैंने बताया कि यूएस में हुआ था, देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन द 13 ब्रिटिश टेरिटरीज। 13 ब्रिटिश टेरिटरीज के बीच में यूएस में क्या हुआ था? 13 ब्रिटिश टेरिटरीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक। बट इंडिया में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। एंड इवन वी हैव गिवन देम द चॉइस, either they can join India, join Pakistan or remain independent, ठीक। So the India was not an agreement between the states, so we don't call it the federation of the state. Getting your point? So that's why we not call it the federation of state, instead of we called it the union of states. Clear? Second reason, so this was the first reason why we called it the union of states, why we don't call it the federation of the state. The second reason for that is that no state in India has the right to secede from India. No state in India has the right to secede from India. यानी कि इंडिया से कोई भी स्टेट वापस नहीं जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस जब हमने ऑप्शन दिया था प्रिंसली स्टेट्स को, सो द प्रिंसली स्टेट हैव डिसाइडेड, प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया था कि द प्रिंसली स्टेट्स हैव डिसाइडेड टू गिव अप देयर सॉवरेंटी, वो अपनी सॉवरेंटी को गिव अप कर देंगे, एंड दे विल मर्ज विद द इंडिया, और दे विल accede with the यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर? वो क्या करेंगे? अपनी जो सॉवरेंटी है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे, गिव अप कर देंगे, और वो इंडिया के साथ क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। नाउ वंस दे बी मर्ज विद इंडिया, दे डोंट हैव द राइट टू secede फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते। क्लियर? वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते। सो दैट्स वाई दिस इज द सेकेंड रीज़न दैट वाई वी कॉल्ड इंडिया as the union of states. Union of states, cause no state has the right to secede from India. इंडिया से अलग होने का आपको अधिकार नहीं है। क्लियर? They don't have the option, they don't have the power, they don't have the right to secede from the India. क्लियर? Now अब इसको अगर देखें तो फर्स्ट आप स्टेटमेंट समझ गए हैं। द इंडिया दैट इज द भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। India, it is the reflection of the modernity of our country. Bharat, it is the reflection of the traditional values of the country. Shall be the union of state, not the federation of states. Union of states, मैंने आपको 2 रीजन्स बताएं इसके, ठीक, आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? तो फिर से मैं बता देता हूँ। तो पहला रीज़न क्या था कि बिकॉज वी डोंट हैड द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है, जस्ट लाइक द US हैज़, दैट्स वाई द US कॉल्ड द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। पर इंडिया में ऐसा नहीं कहते हैं। क्लियर? एंड द सेकेंड रीज़न इज द स्टेट्स डोंट हैव द राइट टू secede फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं। दे कांट ब्रेक अपार्ट फ्रॉम इंडिया। द सेकेंड आर्टिकल 1
का जो 2 पार्ट है, इट सेज दैट द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. नाउ इन इंडिया वी हैव द 12 शेड्यूल्स. ठीक, अब देखें शेड्यूल्स बनाए क्यों गए हैं. ठीक है भाई, क्यों शेड्यूल्स बनाए गए हैं, है ना, कोई कुछ ना कुछ तो रीजंस होगा. सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रख देते हैं, शेड्यूल्स अलग से क्यों बनाए. देखिए, अगर सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रख देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही इतना बल्कि है, वॉल्यूमिनस है, और वो और ज़्यादा क्या हो जाता, बल्कि हो जाता. क्लियर. सो दैट्स वाई हमने क्या किया कि हमने शेड्यूल्स को अलग रखा हुआ है. एंड शेड्यूल्स करते क्या हैं, दे एक्सप्लेन द टॉपिक विच इज़ गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे पहले जो आप स्टेटमेंट जब 2 देखोगे, आप आर्टिकल 2 देखोगे, फर्स्ट का ऑप्शन का 2 देखोगे तो इसमें लिखा हुआ द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल्स. अब यहाँ पर स्टेट्स और टेरिटरीज की बात नहीं की गई है, इट इज़ मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल. क्योंकि अगर बात करते हैं, लेट्स से राइट नाउ वी हैव 28 स्टेट्स, वी हैव द 8 यूनियन टेरिटरीज, अगर इनको उन सबको यहाँ पर मेंशन करते हैं, इट बिकम सो मच बल्कि. So that's why to make the constitution not look very bulky, we have separated this part. So the function, the purpose of the schedules is just to explain the articles. So it is the explanatory memorandum of an article. Schedule, अगर कोई पूछे आपसे what is the schedule, why we have added schedule, so it is the explanatory मेमोरेंडम, ठीक, ऑफ आर्टिकल. ठीक है, ये सब क्या है, दिस इज जस्ट फॉर द कॉस्मेटिक रीजंस. दिस इज जस्ट फॉर द कॉस्मेटिक रीजंस. क्लियर. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आर्टिकल 246 की. ठीक, तो आर्टिकल 246 बात करता है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट and by the legislature of the states. Means the article 246 is talking about the subject matter. कौन कौन से subject matter हैं जिनमें जो state है and the center can make the laws. Now अगर वो सारे matters को, सारे subjects को इसी जगह पे mention कर दिया जाए तो कितना बल्कि हो जाएगा constitution. Hence we have a separate schedule 7. इसमें हमने बात किया है इसके बारे में, वी टॉक्ड अबाउट द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. सारी लिस्ट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है और वहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स को रखा है. ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आंसर कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शेड्यूल. शेड्यूल ऐड क्यों किए गए हैं, शेड्यूल ऐड किए गए हैं फॉर द कॉस्मेटिक रीजन्स ओनली, सो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डोंट बिकम सो मच बल्कि. ठीक है, एंड इट इज़ द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ द आर्टिकल्स. इट इज़ मैंशनड फॉर द कॉस्मेटिक रीजन्स ओनली. क्लियर. ठीक, तो ये है बात करता है द सेकंड शेड्यूल, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो टेरिटरी और स्टेट्स हैं उसको हमने फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है. क्लियर. नाउ द थर्ड पार्ट इज दैट इज द 1(3), द फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट का पार्ट 3. It says that the territories of India shall comprises. Now अब यहाँ पर बात किया गया है कि इंडिया की जो टेरिटरीज हैं वो comprises कौन कौन सी होती हैं. What are the territories of the India? The first is a territory of the states. जो स्टेट की टेरिटरी होगी वो क्या होगी, वो इंडिया की टेरिटरी होगी. Just like we have India. ठीक है, तो इंडिया, let's say I'm drawing just very rough map. ठीक है, so now it's good. तो ये है जैसे इंडिया, तो इंडिया की जो टेरिटरी है, ये जो पूरी बाउंड्री है, ठीक है, ये जो पूरी बाउंड्री दिख रही है, तो ये क्या है, ये इंडिया की टेरिटरी है. तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जो हमारी स्टेट है, यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है अभी डेफिनेशन में दूंगा. स्टेट का मतलब यहाँ पे नेशन से है. क्लियर. ठीक, सो ये जो टेरिटरी है, यानी कि ये जो लाइन बनी है, ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है, यही क्या है, ये टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स है. एक तो पहले यहाँ पर ये बात की गई. दूसरी बात की द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. ठीक, यानी कि हमारे पास जो स्टेट्स की टेरिटरी हैं वो तो ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द यूनियन टेरिटरी टू. ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनियन टेरिटरी भी हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे लक्षद्वीप है, ठीक है, तो लक्षद्वीप यहाँ पर है. ठीक, अब लक्षद्वीप तो क्या है, ये जो इंडिया की जो टेरिटरी उससे तो बाहर है. ठीक है, वो से बाहर है, बट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी टेरिटरी ऑफ द इंडिया. तो यूनियन की टेरिटरी में वो भी इंक्लूड होगा. गेटिंग अ पॉइंट. फिर से समझें इसको.
पहला लिखा हुआ है यहाँ पर कि टेरिटरी है क्या, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंडिया की जो टेरिटरी है शैल बी कंप्राइजेस ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो भारत है उसकी जो एक्चुअल बाउंड्री है वो टेरिटरी में इंक्लूड होगी। और क्या क्या टेरिटरी में इंक्लूड होगा, द यूनियन टेरिटरी विल ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी टेरिटरी, यानी कि फिर से देखें आप इसको, टेरिटरी एक शब्द है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जो स्टेट या हमारी जो नेशन की जो टेरिटरी है वो इंक्लूड होगी, उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी टेरिटरी में इंक्लूड होगी, और उसके साथ साथ थर्ड क्या लिखा हुआ है, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, अगर हम इन फ्यूचर कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं, ठीक, कोई टेरिटरी एक्वायर्ड करते हैं, सो दैट टेरिटरी विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी लिस्ट ऑफ द टेरिटरी और इन दी डेफिनेशन ऑफ द टेरिटरी। क्लियर? सो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, ये तीन डेफिनेशन है, ये क्राइटेरिया हैं किसके, टेरिटरी के। नाउ ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट द टेरिटरी विल इंक्लूड द एक्वायर्ड टेरिटरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम ये सिर्फ लिखते हैं कि द टेरिटरी ऑफ द इंडिया इज़ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द नेशन, और द टेरिटरी दैट इज़ द यूनियन टेरिटरी, और थर्ड को इंक्लूड नहीं करते, तो इसका मतलब था कि इंडिया की जो टेरिटरी थी वो क्या थी, फिक्स थी, एंड यू कैन नॉट नीदर डिक्रीज द टेरिटरी नॉर इंक्रीज द टेरिटरी ऑफ द India. But cause we have added the C part, and the C part is saying कि we can acquire some sort of territory too, हम किसी टेरिटरी को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या देता है, दिस गिव्स अस द रेजिलियंस और दिस गिव्स अस द इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ द टेरिटरियल एक्वायरमेंट। क्लियर? तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर बात किया जाए, यू नो दैट इफ़ यू टॉक अबाउट दी पौंडीचेरी, सो पौंडीचेरी इट वॉज द फ्रेंच सेटलमेंट, ठीक, पौंडीचेरी वॉज द फ्रेंच सेटलमेंट, एंड द पौंडीचेरी, ठीक, इट वॉज सीडेड टू इंडिया बाई फ्रेंच, पहले ये फ्रेंच के पास था, एंड देन इन द ईयर ऑफ 1954 दिस फ्रेंच टेरिटरी ऑफ द पौंडीचेरी वॉज सीडेड टू इंडिया। तो कहने का मतलब है, अगर हमारे पास ये आर्टिकल 3 नहीं होता, आर्टिकल 3 का पार्ट 3 नहीं होता, पार्ट सी नहीं होता, सो हम कभी इस टेरिटरी को एक्वायर ही नहीं कर पाते। क्लियर? ठीक। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने इस पार्ट सी को डाला, और इस पार्ट सी की वजह से हमने पौंडीचेरी को भी अपने अंडर ले लिया। ठीक। और पौंडीचेरी की बात किया जाए तो 1954 में हमने इसको फ्रेंच से सीड किया था, ठीक है, और इन द ईयर ऑफ 1962 तक ये एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह ही काम करती रही, एंड आफ्टर 1962 इट बिकम्स द यूनियन टेरिटरी। क्लियर? ठीक। और दिस एग्रीमेंट वाज आल्सो रेटिफाइड इन द फ्रेंच पार्लियामेंट टू। ठीक। नाउ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 2. So the Article 2 talks about the admission of or the establishment of the new state. Now there are two terms that you need to pay attention on. The first is the admission and the second one is the establishment. Admission का मतलब क्या होता है, that the state was already there. For example, if you take the example of the Sikkim, if you take the example of the Goa, we have acquired Sikkim, we have acquired Goa, but we have not created them. The Goa and the Sikkim was already there. ठीक. And the meaning of the establishment is that it was not there earlier. ठीक है, we have created them or we have invented them, some sort of thing. ठीक है, हमने उसको not invented them, recognize किया हमने, and then we have adopted it. For example, the Siachen glacier. ठीक, तो Siachen glacier जो था पहले वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, ठीक है, no one was having claim on them. ठीक है, क्योंकि वो it was the rough land, ठीक है, कुछ होता नहीं था वहाँ पर, ठीक है ना, ड्राई लैंड। बट स्लोली हमने क्या किया, हमने क्या किया कि जब वहाँ पर जो चाइनीज़ ऑक्यूपेशन होने लगा, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इंटरवेंशन होने लगा, देन वी हैड मेड द क्लेम ऑन इट कि इट इज़ आर पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट। एडमिशन मीन्स द स्टेट वॉज ऑलरेडी देयर एंड वी वर हैविंग क्लेम ऑन इट आफ्टरवर्ड्स, एंड एस्टैब्लिशमेंट मीन्स वो पहले से वो नहीं था वहाँ पर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमने इस्टेब्लिश किया एंड देन वी हैड क्लेम। क्लियर? सो पहले आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, द एडमिशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, द पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और
establish a new states or such terms and the condition as it thinks fit. Clear? पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी न्यू स्टेट को क्या कर सकती है, एडमिट कर सकती है यूनियन में, एडमिट कर सकती है यूनियन में और इस्टेब्लिश कर सकती है एज द न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड द कोऑर्डिनेशन एज ही थिंक्स फिट. क्लियर? नाउ इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सिक्किम का, तो सिक्किम जो था हमने उसको क्या किया, उसको एडमिशन किया. ठीक, एडमिशन किया कहाँ पर, इंडियन यूनियन में, इंडियन यूनियन में. सो वी हैव एडमिटेड द सिक्किम इन द इंडियन यूनियन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सिक्किम, so the Sikkim was under the hereditary monarch, under the hereditary monarch, एक hereditary monarch थे. ठीक, उसी के अंदर जो सिक्किम था रूल कर रहा था. एंड द डायनेस्टी वॉज द चोग्याल डायनेस्टी. सो द सिक्किम वॉज अंडर द हेरिडिटरी मोनार्क कॉल्ड द चोग्याल्स. क्लियर? एंड in Sikkim there was a spring revolution happened. ठीक, spring revolution happened in the year of 1973. ठीक, and the government of Sikkim, फिर वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ, that is the Government of Sikkim Act of 1974, और जो चोग्याल का रूल था it was turned down. Clear? And the Chogyal become the nominal head of the constitution. ठीक, so in the year of देन द सिक्किम, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दे शो देयर विल टू मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया एंड henceforth वी हैव अमेंडेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमने क्या किया, वी हैव अमेंडेड द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, द एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स. तो अगर हमें किसी स्टेट का एडमिशन करना है, एस्टेब्लिशमेंट करना है, सो वी कैन रिसॉर्ट or we can take the help of the part 2 of the constitution. So we have taken the help of the part 2 of the constitution and we have amended the constitution 35th time. Take, so it was the 35th amendment act of the 1974 and we have added article 2A. तो article 2A को हमने add किया, added, and the Sikkim become an associate state. Okay, सिक्किम क्या बन गया, सिक्किम become an एसोसिएट स्टेट. तो सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट बन गया. एंड लेटर ऑन हमने एक और अमेंडमेंट किया, दैट इज दी 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 एंड वी हैड मेड दी सिक्किम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट. तो पहले सिक्किम क्या बना था, फर्स्ट सिक्किम वॉज मेड एन एसोसिएट स्टेट और उसके बाद उसको हमने फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया था एंड सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, 22nd स्टेट ऑफ इंडिया. तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द सिक्किम. ठीक, तो सिक्किम को हमने ऐड कैसे किया, फ्रॉम दी पहले हमने 35th अमेंडमेंट किया और उसके बाद 2A को ऐड किया, एसोसिएट स्टेट बनाया और एसोसिएट स्टेट के बाद 36th अमेंडमेंट से हमने उसको फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया. ठीक है, यहाँ पर भी देख लिखा होगा कि पहले हमने सिक्किम को एक 2A से एसोसिएट स्टेट बनाया, सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट विद द यूनियन, और इसको ओमिट किया बाय द 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1975 और उसके बाद उसको हमने फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया. क्लियर? सो दिस वाज अबाउट दी, हमने आर्टिकल 2 कवर कर लिया, आर्टिकल 2A कवर कर लिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में. आर्टिकल 3 क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स. ठीक, एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स. ठीक, यानी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन फॉर्म द न्यू स्टेट, किसी एक नए स्टेट को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है. एंड द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो अल्टर द एरिया और द बाउंड्री और द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट. ठीक, तो किसी एक एरिया और बाउंड्री उसके नेम को भी क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है बाय द लॉ. ठीक है, सो पार्लियामेंट के पास क्या है, पार्लियामेंट हैज़ दिस राइट. नाउ प्लीज़ पे अटेंशन हेयर, जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट यहाँ पर क्या कर सकता है, किसी बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, एरिया को अल्टर कर सकता है और एग्जिस्टिंग किसी स्टेट के नाम को भी चेंज कर सकता है. क्लियर? क्योंकि नाउ द सेंटर इज चेंजिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, चेंजिंग द बाउंड्री और अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट. नाउ डज सेंटर नीड द परमिशन
और द कंकरेंस ऑफ द स्टेट? स्टेट की परमिशन या स्टेट की कंकरेंस चाहिए क्या अब? नो, द आंसर इज नो. द सेंटर डोंट नीड द परमिशन और द कंकरेंस ऑफ द स्टेट. रादर देन जो भी बिल आएगा, ठीक, द बिल विल फर्स्ट प्रोड्यूस टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा. सो अ बिल अंडर आर्टिकल 3 कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट और विदाउट द परमिशन और विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा, ठीक. और प्रेसिडेंट काम क्या करेगा? प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट एक कंसल्टेटिव प्रोसेस करेगा. कंसल्टेटिव प्रोसेस करेगा, ठीक है. तो व्हाट इज द कंसल्टेटिव प्रोसेस? कंसल्टेटिव प्रोसेस मतलब क्या कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा विद द रिस्पेक्टिव स्टेट्स कि भाई साहब अब क्या कर रहे हैं. द सेंटर वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ योर स्टेट. द सेंटर वांट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ योर स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स. क्लियर? नाउ इसमें द रोल ऑफ द स्टेट्स इज नॉट सिग्निफिकेंट. जो स्टेट्स का जो रोल है इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. क्लियर? उनका कोई रोल नहीं है. सेंटर इट इज़ ऑन दी विम्स एंड द फैंसी. इट इज़ ऑन दी विम्स एंड फैंसी ऑफ सेंटर. whether center want to change the name of the state, alter the boundary, it is up to the center. Center just need to take the permission or take the concurrence of the president, and president will do just the consultative process and ask the state whether the state want or not. ठीक है? But anyhow the president has to say yes. ठीक है? And this bill will be passed by the parliament and the majority will be simple majority. ठीक, यानी कि जो बिल है वो पार्लियामेंट से पास होगा विद द सिंपल मेजॉरिटी. व्हाट इज द सिंपल मेजॉरिटी? द 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ. जैसे सपोज कि देयर वाज 500 मेंबर्स, ठीक, 500 मेंबर हैं, ठीक. उसमें से 100 जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो कितने बचे? 400. और जो 100 हैं वो वोट नहीं करना चाहते हैं, 100 जो हैं वो एब्सेंट हैं, ठीक. एंड 100 डोंट वांट टू वोट. डोंट वांट टू वोट मीन्स दे डोंट वांट टू वोट नीदर इन द फेवर नॉर अगेंस्ट. यानी कि कोई बिल आया है, लेट्स से इस कंडीशन में यही वाला बिल है, कौन सा, कि हमें एक स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना है, उसको अल्टर करना है. तो वो जो 100 हैं वो ना ही इसके फेवर में है ना ही इसके अपोज में, नीदर इन द फेवर नॉर इन द अपोज. तो 100 नहीं आए थे तो हमने बताया 400. अब 100 जो हैं वो वोट नहीं कर रहे हैं, तो कितने बचे? 300. सो ये जो 300 मेंबर हैं ये क्या है? ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जितने प्रेजेंट हैं और जितने वोटिंग कर रहे हैं. और इसका 50%, इसका 50% मीन्स 150 प्लस 1, दिस इज दी सिंपल मेजॉरिटी. क्लियर? सो ये क्या है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, आई होप अच्छे से आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इस कंडीशन में सिर्फ कंसल्टेटिव प्रोसेस लगता है. क्लियर? ठीक. नाउ तो आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे इसको. द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, किसी नए स्टेट्स को बनाना, और अल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स. पार्लियामेंट बाय लॉ form a new states by the separation of the territory from any states or by uniting two or more territories or the states or the part of the state or by uniting any territory to any part of the state. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट अगर चाहे सो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक नए स्टेट को बना सकती है. कैसे? सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट. यानी कि अगर कोई स्टेट है तो उस स्टेट का किसी थोड़ा सा एक पार्ट निकाल के, जैसे ये पार्ट निकाल लिया, ठीक, और इस पार्ट को निकालने के बाद इसको एक अलग स्टेट बना सकती है. ठीक, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो स्टेट मैंने बताया यहाँ पर ये बिहार है, ठीक. तो हमने क्या किया, बिहार का कुछ पार्ट निकाल के हमने क्या बना दिया, हमने झारखंड बना दिया. बनाया था ना हमने बिहार का कुछ पार्ट निकाल के क्या बना दिया था, झारखंड बना दिया था. सो ऑन दी 15th of November 2000 क्या किया हमने, बिहार का सम पार्ट ऑफ द बिहार वॉज कार्व्ड आउट टू फॉर्म द झारखंड. इन द सेम मैनर द सम पार्ट ऑफ द यूपी
carved out to form the Uttarakhand. So the UP was bifurcated. The UP was bifurcated. Clear? Bifurcated means divided into two parts. Now the parliament has the right to bifurcate, trifurcate, ठीक, और separate any state. Clear? उसके पास वो right है under Article 3. So the part of the UP was bifurcated in 2000. On the 9th of November 2000, the part of the UP was bifurcated to form the Uttarakhand. In the same manner, the part of the Chhattisgarh, the part of the MP was carved out to form the Chhattisgarh. ठीक. And on the 2nd of June 2014, the part of the Andhra Pradesh, was carved out on the 2nd of June 2014 to form the तेलंगाना. क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन सारी जगहों पे हमने क्या किया है, हमने स्टेट का क्या किया है, किसी एक स्टेट्स का कोई एक टेरिटरी निकाल ली है और एक नया स्टेट बना दिया है. गेटिंग अ पॉइंट? किसी एक स्टेट की कोई टेरिटरी निकाल के एक नया स्टेट बनाया है. कौन कौन सी टेरिटरी? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली. क्लियर? ठीक. द नेक्स्ट इज और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स. ठीक. पार्लियामेंट क्या कर सकती है, दो या उससे अधिक स्टेट्स को मिला भी सकती है, या उस स्टेट के किसी पार्ट को मिला सकती है. ठीक. या कोई जो टेरिटरी है उसको मिला सकती है और एक नया स्टेट बना सकती है. सिंपल इन सिंपल वर्ड्स सिंपल से क्या बात है कि इफ द पार्लियामेंट वांट इट कैन कार्व्ड आउट अ पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ द स्टेट टू फॉर्म द न्यू स्टेट, और द पार्लियामेंट कैन यूनाइट टू और मोर स्टेट्स टू फॉर्म अ न्यू स्टेट. क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन एज पर द आर्टिकल 3 स्मॉल a. ठीक है ना. अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझने की ज़रूरत है. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द यूएसए, ठीक, तो यूएस में क्या है, यूएस इज इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट. यूएसए की डेफिनेशन देते हैं कि इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ indestructible state. But in case of India, we say that India is indestructible union of destructible state. Now what this means? देखिए, यूएस में क्या है, यूएस में इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है. ठीक. इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन मतलब यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन. ठीक है. जो वहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, वैसे वहाँ पे यूनियन नहीं बोलेंगे, वहाँ क्या बोलते हैं, देयर वाज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, बट इन इंडिया वी कॉल्ड इट द यूनियन ऑफ स्टेट. हमारे में क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट. रीज़न मैंने बताया अभी आपको पहले, अगर आप देखना चाहें दोबारा देख सकते हैं उसको, जिसमें मैंने बताया है कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स को कहते हैं, नॉट वी डोंट कॉल इंडिया एज द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. क्लियर? नाउ द यूएस में क्या है, इट इज़ द इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यानी कि आप यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पूरे यूएसए को दोबारा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. एंड इवन यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द स्टेट्स. So the states have their own right, the states have their own identity, the states have their own recognition. Clear? So you cannot destroy the states. ठीक. This is the concept of the USA, that is the indestructible union with indestructible state. But in case of India, there is a little bit difference what we have seen in the USA. In India, we have the indestructible union, but we have the destructible states. Means you cannot divide भारत. भारत है, you cannot divide it. आप उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि पूरा भारत को तोड़ दिया, क्लासीफाई कर दिया. ठीक है ना, भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए. ठीक है, तो ऐसा कोई नारा लगा रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, ऐसे. तो दिस कैन नॉट बी द केस. सो इंडिया इज़ द इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन. ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था, वी हैव द यूनियन ऑफ स्टेट्स. इवन द स्टेट्स कैन नॉट हैव द पावर to secede from India, but we have the destructible states. Destructible states का मतलब क्या है,
Under Article 3, if the union want, if the parliament want, it can bifurcate, trifurcate और क्वाड्रिफरकेट, ठीक, किसी भी स्टेट को बाइफरकेट, ट्राइफरकेट, क्वाड्रिफरकेट कुछ भी कर सकता है, क्लियर, या दो स्टेट्स को मर्ज भी कर सकता है. द पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, कैन अल्टर द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मर्ज टू यूनियन टेरिटरीज. मीन्स it is up to the whims and the fancy of the center that it wants to, whatever it can do, whatever it wants to do with the states. The only thing is that it needs the concurrence of the president. Okay, and anyhow president have to say yes, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. And the amendment of the bill will pass with the simple majority. ठीक है, सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन इंडिया वी आर द डिस्ट्रक्टेबल, वी हैव द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, बट द यूएस हैज़ द इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. क्लियर, ठीक. और एक और चीज़, जैसे मैंने बात किया यहाँ पे डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, तो डिस्ट्रक्टेबल स्टेट का मतलब मैंने बताया आपको कि बाइफरकेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, इवन वी कैन डाउनग्रेड, एनी स्टेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनग्रेड? जस्ट एज इन केस ऑफ दी JNK. देखिए, JNK वॉज अर्लियर द स्टेट, ठीक, JNK क्या था? इट वॉज द स्टेट, बट इट वॉज डाउनग्रेडेड टू द यूनियन टेरिटरी. देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक यूनियन टेरिटरी होता है. यूनियन टेरिटरी को अगर आप अपलिफ्ट करते हो, इट बिकम द स्टेट, बिकॉज यूनियन टेरिटरी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर. क्लियर, but the state was not under the control of the center, it is independent entity. So if the union territory is moved or got the status of the state, तो इसको कहते हैं the upgradation. But if the state got the status of the union territory, it is downgraded. Till now no state has downgraded apart from the or except the JNK. Got my point? ठीक है, okay. So this is it. Now अब हम बात करते हैं, तो ये पहला पार्ट तो हो गया हमारा, ठीक. दूसरा लिखा हुआ है इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट. अगर यूनियन टेरिटरी चाहे, अगर सेंटर चाहे, तो इट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, यानी कि जैसे किसी, मैंने बताया किसी यूनियन टेरिटरी को उसमें क्या किया, उसमें इन्वॉल्व कर दिया. क्लियर, और जितना ये स्टेट लिखा हुआ है, ये सारा स्टेट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो कहाँ पर है? इसकी डेफिनेशन आपकी आर्टिकल 12 में है, उसके बारे में बात करेंगे अभी. ठीक है, वैसे इस स्टेट का मतलब क्या है, इसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है. यानी कि जैसे स्टेट का मतलब मैंने, अगर जैसे ये भारत है, ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट. तो स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं है जो सिर्फ 28 स्टेट हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो 8 यूटीज़ हैं वो भी इस स्टेट की डेफिनेशन में आ रही हैं, तो उनके भी एरिया को इंक्रीज़ किया जा सकता है. एंड द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. किसी एक स्टेट के एरिया को डिमिनिश भी कर सकते हैं. अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट के बाउंड्री को भी अल्टर कर सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो द अल्टर द नेम ऑफ ए स्टेट. ठीक, किसी एक स्टेट के नेम को भी अल्टर कर सकते हैं. क्लियर, सो दिस वॉज आर्टिकल 3 दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. नाउ मूविंग ऑन द आर्टिकल 4. आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 टॉक्स अबाउट दैट the law made under the article 2 and 3. ठीक, the law made under the article 2 and 3. article 2 क्या था? article 2 was to admission. ठीक है, to admission and establishment of any state, any new state. ठीक है, जैसे मैंने सिक्किम के बारे में बताया, सिक्किम को हमने इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की थी. तो ये है क्या? दिस इज द एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री एंड द एरिया ऑफ द और द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट. तो लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड द कंसिक्वेंशियल मैटर. क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर कोई लॉ बनाते हैं, ठीक, सो दिस लॉ विल गिव और विल प्रोवाइड अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला शेड्यूल है और दूसरा जो चौथा शेड्यूल है, उसमें भी क्या हो जाएंगे? चेंजेस होंगे. द फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात करता है, एंड द फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द सीट्स ऑफ राज्यसभा.
ठीक, तो यूनियन टेरिटरी उसमें भी चेंजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई सपोज अगर आप फर्स्ट सेकंड शेड्यूल है, ठीक है, सेकंड आर्टिकल है, उसमें आप किसी एक नए स्टेट को इंक्लूड कर रहे हो, तो नए स्टेट को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें उसके रिस्पेक्टिव क्योंकि उसके उसके लिए हमें सीटें अलॉट करनी पड़ेंगी लोकसभा की, ठीक है, राज्यसभा की, और अगर असेंबली है तो वहाँ की, तो उस कंडीशन में क्या होगी, और सीट्स ऑफ राज्यसभा, तो उस कंडीशन में हमें वहाँ की जो सीट्स ऑफ राज्यसभा हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये टोटल नंबर ऑफ जो राज्यसभा की सीट्स हैं दैट इज़ राइट नाउ मेंशन इन द फोर्थ शेड्यूल, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? एंड क्योंकि लेट से हमारे पास 28 स्टेट हैं अभी, ठीक है, नाउ वी हैव एडेड वन मोर स्टेट बिकम 29, सो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा कहाँ पर, फर्स्ट शेड्यूल में भी। तो इसीलिए बोला गया कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक, तो इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, वो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के अमेंडमेंट को भी, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को भी अमेंड करेगा। एंड द सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड द कंसिक्वेंशियल मैटर, इसका मतलब क्या होता है कि सप्लीमेंटल मैटर, देखिए थोड़ा सा इसको समझेंगे कि व्हाट इज इट। सप्लीमेंटल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी लॉ में कोई अमेंडमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उस अमेंडमेंट को करने के लिए, ठीक है, उसके सप्लीमेंट में जो अमेंडमेंट आपको करना पड़ रहा है दैट इज़ दी सप्लीमेंटल एलिमेंट, सप्लीमेंटल अमेंडमेंट। जैसे सप्लीमेंटल का मतलब हिंदी में होता है ऐसे कि वो हेल्प कर रहा है उसको, ये उसके साथ है, it is in the collaboration with that particular thing, so this is the supplemental matter. The next is the incidental. incidental का मतलब क्या होता है कि आपने कोई अमेंडमेंट किया एंड फॉर विद दैट इफेक्ट, जब वो अमेंडमेंट हुआ तो उसके इफेक्ट्स की वजह से कौन सा अमेंडमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। एंड कंसिक्वेंशियल मीन्स you have done some amendment and as the result of that amendment if something is changing, it is the consequential, ठीक है। सो वी यूज थ्री टर्म्स हेयर, द सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड द कंसिक्वेंशियल मैटर्स। एंड प्लीज नोट इट डाउन, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी आप अमेंडमेंट करोगे इट विल नॉट बी डीम्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्टिकल 2 और 3 में, ठीक है, नो सच लॉ aforesaid shall be deemed to be amendment of this constitution for the purpose of article 368। तो it is not the constitutional amendment, ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन नहीं होगा, इट इज़ जस्ट एज दी सिंपल अमेंडमेंट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि वहाँ पर जैसे अगर आप नई स्टेट को एडमिट कर रहे हो, या इफ़ यू आर चेंजिंग द, इफ़ यू आर अल्टरिंग द बाउंड्री नेम of the existing states or formation of the new states, so this is all you need to do with the simple majority, not the special majority. Clear? Simple majority. So that's why, because we are doing it with the simple majority, that's hence we are not considering it as the constitutional amendment under the 368, because for that we need a special majority, and the simple majority is the member, total member present and voting, कितने लोग present हैं और कितने लोग voting दे रहे हैं, ठीक है। So this is the simple majority. Clear? So in this lecture we have talked about the union and territory part, that is we have covered the article 1, 2, 3 and 4. Clear? ठीक। From the next article we will talk about the citizenship. नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बात किया आर्टिकल 1 जिसमें बात किया हमने इंडिया और भारत के क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्या है, इंडिया इज़ द मॉडर्न नेम, भारत इज़ द क्लासिकल नेम और द ट्रेडिशनल नेम, ये बात किया हमने। फिर बात किया हमने एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स को कैसे एडमिट किया जाता है इंडिया में, ठीक है। एंड फॉर दैट इवन वी हैव एडमिटेड द सिक्किम विद द 35th Amendment Act 1975 by adding the 2A, and the Sikkim become an associate state. Afterward, with the 36th Amendment 1976, Sikkim become the full-fledged state. And the Article 3 talks about the formation of the new state and alteration of the area boundary and the name of the existing state. For that, the Parliament can do any amendment with the simple majority to change or alter the name and existing boundary of the state. And the article 4, in the article 4 it is written that if we are making any sort of change or any amendment in the article 2 and 3, ठीक, or we are admitting any state under article 2 and 3, so this would change the schedule 1st and the 4th of the constitution, ठीक है, by itself. So for that we don't need any special amendment, it will
be the consequential, supplemental, and incidental. And any act or any law made under the Article 2 and 3 will not be deemed as the constitutional amendment under Article 368. So it will be deemed just as the simple amendment, because we are doing it with a simple majority, that is the total member present and voting. So this what we have done in the part 1. So we will meet you at the part 2. So till then, take care. And if you have any doubt, if you are getting this lecture, if these lectures are getting directly into your head, just do let me know in the comment section. I'll be very glad to see your comments. Till then, take care. Goodbye. Thank you. Jai Hind.